I was waiting for it to be 4 o'clock. That's what happened. I guess it was waiting it to be 4:09. Yeah. Has it gone? Have you got the message? Yes. Okay. Do you want to check whether it is live? No, it's okay. Okay. So there was just one point I wanted to add on yesterday, points to raise your vibrations. I just had one more point to add. Another thing is treat your subordinates well. How you treat your staff or people who are younger, how we treat children, that is also very important. They do say that a person is judged by the way he treats his subordinates. आप बहुत अच्छे से मेरे से बात कर लेंगे, किसी से पार्टी में जाएंगे अच्छे से बात कर लेंगे, बट आप अपने स्टाफ से, कोई रिक्शा वाले से, कोई टैक्सी वाले से या बच्चों से कैसे बात करते हैं, दैट इज अनदर वन पॉइंट. एंड डू नॉट वॉच न्यूज एंड सीरियल्स. आई नो दे वेरी टेम्पटिंग. नया सीरियल शुरू होता है ना, बड़ा हैप्पी हैप्पी, द कैरेक्टर्स आर सो लाइवली, सो एक्साइटिंग, एंड बाय द टाइम वी गेट हुक्ड टू देयर लाइव्स, then the downfall starts. उनके लाइफ में ये गड़बड़ वो गड़बड़, by then we are hooked, and but all those only bring us below the line, only lower our vibrations. Even news, unless it's positive news, some channels आजकल बहुत अच्छा दिखाते हैं, but unless it is that, just keep away from things we can't do anything about, right? So I just wanted to add those points, and today I think Shalini is taking us into a very different journey. Yes, Shalini, over to you. Thank you. So what we have done till now is raising our vibration. हमें अपने vibration को, अपने vessels को कैसे positivity में रखना चाहिए. We have learned some few tips कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. Just now Bhavi also said कि हमें TV नहीं देखना चाहिए. So this is how we can keep our vibrations. We can raise it. And if we have to raise it हर time पे, we need to maintain it also. The vibration needs to, for manifesting our dreams, our vibration needs to be maintained. What is manifestation? Manifestation is कोई भी चीज मिल जाना. It should be tangible. We can feel it, and that is when we have attracted it with our belief that we will get it. That is manifestation. If you think it, it will come. That belief that if I know, if I can imagine it, it has to be mine. Sister Shivani always mentions for manifestation के लिए वो बोलती है ना, संकल्प से सिद्धि. What is sankalp? It is thought. It is what we are thinking. And as we had learned yesterday, जो हम सोचते हैं वैसा हम attract करते हैं. That is what law of attraction is, right? कि जैसा हमने सोचा वो हम attract करते हैं. किसी ने कभी सोचा कि what we want is not always what we get. What we get always is what we are. हम कैसे हैं, हमारा अंदर की मनोस्थिति कैसी है, what level, at what frequency are we vibrating. अगर हम खुश हैं तो हमें खुश रहने की और वजह मिलता है. अगर हम दुखी हैं तो we attract circumstances, we attract people जो हमें और दुखी करते हैं. Haven't we ever seen this? कभी किसी ने ये चीज को नोटिस किया कि आप जैसा फील करते हो आपके आजू बाजू के लोग भी वैसे ही आपको मिलते हैं. So this is what we are attracting. Rhonda Byrne भी बोलती है, we receive exactly what we see. See yourself living in abundance and you will attract it. तो इससे हमें क्या है, हमारा जो बिहेवियर है, हम जो बिहेव करते हैं, हम जो तरीके से रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं, वो हमको अलाइन होना पड़ेगा हमारे वाइब्रेशंस में. आज सपोज हमारा बिहेव, आज हमें चाहिए बहुत बड़ा सारा बंगलो, उसमें काफी सारे एमिनिटीज चाहिए, सारी नई फैसिलिटीज चाहिए. ठीक है, हमने अपना ड्रीम तो बना लिया कि वी रियली वांट अ ह्यूज bungalow with 6 bedrooms and what not. लेकिन in our behavior हम अभी भी पैसों के लिए बहुत चिंता करते हैं. At any given point of time we are thinking महंगाई तो बढ़ती जा रही है, हाय पैसा कैसे आएगा, हम इस बंगलो के लिए पैसा कैसे इकट्ठा करके कैसे इस बंगलो का हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे, राइट?
डोंट वी ऑफन डू दैट? हम सब्जी वाले के पास भी जाते हैं तो वो 10 रुपए के लिए वी ट्राई टू बार्गेन सो मच. आप बार्गेन कीजिए. when we are going to any shop, आप बार्गेन करो. but when we are exchanging that money, that circle of money, as भाभी had said yesterday, जब आप पैसों का आदान प्रदान करते हो, चाहे वो डाउन पेमेंट के लिए बहुत डिफिकल्टी से आपके पास पैसे आए हो, लेकिन आप जब वो बिल का भुगतान कर रहे हो, आप जब वो उस चीज को दे रहे हो, एट दैट टाइम व्हाट एनर्जीज, किस टाइप की फीलिंग्स आप कैरी करते हो पैसे के लिए. आप वो पैसे देते वक्त बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ दे रहे हो, बहुत प्यार के साथ दे रहे हो, या फिर आप बहुत चिंता में दे रहे हो, आप ये सोच के दे रहे हो हाय इतना पैसा चला गया. Are we getting the feeling behind every transaction is so important for you to receive back that money. आपने अगर चिंता के साथ पैसे दिए, आपका वो पैसा जब घूम फिर के आपके पास आएगा तो आपके पास चिंता ही लेके आएगा, खुशहाली नहीं लेके आएगा. वही पैसा जब आप देते वक्त ब्लेस करके दोगे, सामने वाले की खुशहाली के लिए ब्लेस करके दोगे, तो जब आपके पास पैसा आएगा, you will get back that money where you will attract more abundance. So we have need to align our behavior to our dreams. जो हमें चाहिए, जो हमें हमको हमारे लिए हमारे डिजायर्स फुलफिल करने हैं, उसके लिए हमें अपने आप को अपनी बिहेवियर को पहली बार जा रहे हैं. I request everybody to mute themselves. 20-25 तक निकलेंगे जब होगा. आप 4. Thank you. So we need to align our behavior. अगर हमें कुछ चाहिए, एक रिलेशनशिप में अगर हमको एक्सेप्टेंस चाहिए, तो हमारे बिहेवियर में एक्सेप्टेंस होना पड़ेगा. We have to vibrate at that frequency. अगर हमें प्यार चाहिए, we need to give love. So this is what law of attraction says. What you sow is what you reap. अगर आप क्रिटिकल हो पीपल के बारे में, आप उनके बहुत निंदा करते हो एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में सब आपकी वाहवाही करे, इज इट पॉसिबल? So now that we have raised our vibration, we need to behave in those vibration so that हम उस एनर्जी को मेंटेन कर सके. और एक हमारा विजन जो हमको चाहिए, what we want needs to be very clear. As Sarita Bhabhi had mentioned yesterday ना, हमें वो चीज की क्लैरिटी होनी पड़ेगी, कैसा चाहिए, किस तरीके से चाहिए, कितना चाहिए. और अगर हम उसके वाई में जाएंगे ना कि हमें क्यों चाहिए, तो हमें ये क्लैरिटी आएगी वेदर दिस नीड जो हमको चाहिए दैट इज आउट ऑफ सम ग्रीड, आउट ऑफ सम जेलेसी, या फिर हमारा एक्चुअल नीड है. दैट इज वाई द वाई ऑफ व्हाट वी नीड इज सो इम्पोर्टेंट. वो हमको क्लैरिटी देता है कि ये एक्चुअली हमें चाहिए कि नहीं चाहिए. हम और कभी कभी हमको ये it makes us, I mean, just बोल देना चाहिए ही चाहिए does not mean that we will get it. Now we know ना कि हम जैसे हैं हमको वैसा मिलेगा. Are we ready for the dreams that we are dreaming for? क्या हमारा वेसल क्लीन है? क्या हम हमारा पात्र बोलते हैं ना, हम एक चम्मच लेके खड़े हैं कि हम एक बहुत बड़ा बास्केट लेके खड़े हैं? हम क्या लेके खड़े हैं? हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन आर वी रेडी फॉर इट? कि या फिर हम ही अपने विचारों से, हमारे कोई कारण, हमारे थॉट प्रोसेस से हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं. हमारा थॉट प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है? आवर थॉट प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम आवर बिलीफ सिस्टम्स. जो हम बिलीव करते हैं कि इट इज राइट और रॉन्ग. विल टॉक अबाउट द बिलीफ सिस्टम अ लिटिल लेटर. लेट्स टॉक अबाउट द क्लैरिटी ऑफ द गोल नाउ. सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हमें चाहिए क्या. ये चाहिए, अगर सपोज आज हमें एक बंगलो चाहिए और किसी एक फ्रेंड को वो सेम बंगलो जो हमें चाहिए था वो उसको मिल गया, आर वी एनवियस? क्या हम जेलस हैं, या फिर हम उसके लिए हैप्पी फील कर रहे हैं? व्हाट इज आवर फ्रीक्वेंसी? कैन वी चेंज दिस? कैन वी टर्न आवर एनवियस टू इंस्पिरेशन? कि भगवान ने उसको देखो दिखाया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे दिखा है. नाउ आई नो व्हाट द ब्लूप्रिंट इज. It is coming to me. Universe is showing, coming to me. Can I not be happy for the person who has got it? If I'm happy for the person who has got it, मुझे मिलेगा ही.
क्या पता ये भगवान का कोई ना कोई टेस्ट है आपके लिए कि आप कैसा उस पर रिएक्शन देते हो, क्या फील करते हो. So it is so important that we bless the person from now onwards. I mean, if you want blessings to come to your life, if you want things to materialize, आपके लाइफ में कोई चीज मैनिफेस्ट होना है, तो आप दूसरों के, जैसे आज हमने दूसरों की ड्रीम्स को हम बोलते हैं ना, वी विल ब्लेस ऑल दोज हु आर पोस्टिंग ऑन द फेसबुक, या फिर जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है हम ब्लेस करते हैं. इन ब्लेसिंग्स व्हाट वी आर डूइंग इज हम अपनी तरफ और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हैं. So from today onwards, can we not bless everybody? कभी किसी को किसी पेन में देखा तो can we not bless the person कि उसको शांति मिले, उसका दर्द से उसको छुटकारा मिले. किसी को कोई और डिफिकल्टी में देखा तो let that person be blessed with what the person desires. जैसे जैसे हम blessings बांटते हैं या फिर blessings देते हैं, we are entitled to be blessed, aren't we? जो हम देंगे वही हमें मिलेगा ना, तो we will be entitled to bless. And एक और चीज है faith in the universe. यूनिवर्स क्या है? हमारा पेरेंट है. इट इज लाइक हम एज अ चाइल्ड जब हम 3-4 साल के होते हैं और हम बहुत ऊंचे से जंप करते हैं, हमारे पेरेंट या फादर या मदर नीचे खड़े होते हैं हमें पकड़ने के लिए. वी डोंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर जंपिंग. डू वी थिंक? वी हैव सो मच ऑफ बिलीफ. वो फेथ है हमारे अंदर कि हमको तो पकड़ ही लेंगे. वी जस्ट जंप. सेम इज विथ यूनिवर्स. वो हम परम पिता ईश्वर बोलते हैं ना, तो दे आर लाइक आवर पेरेंट. द यूनिवर्स इज लाइक आवर पेरेंट. तो हमें फेथ दिखाना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा. सपोज कोई टेस्ट भी आ रहा है, यूनिवर्स इज टेस्टिंग अस, गिविंग अस सम चैलेंजेस, कोई डिफिकल्टी आ रही है हमारे जीवन में, तो क्या पता ये डिफिकल्टी, ये जो चैलेंज है वो हमको तैयार कर रही है हमारे ड्रीम्स को पाने के लिए. हमारी जो वाइब्रेशंस है उसको प्रिपेयर कर रही हैं हमारे ड्रीम्स को अट्रैक्ट करने के लिए. यू रियली डोंट नो. So should we not trust the universe and face the challenge with more vigor, with the faith that it is going to show us the way to our dreams? So, I mean, I think if we are in anybody's life, in any person's life, आज के दिन में हजारों डिफिकल्टी होंगी, लेकिन कोई ना कोई चीज के लिए तो हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं. If nothing else, we can be grateful that we are alive today. We have this body today. We are living today. Can we not be grateful for this? So we have to be grateful, and we need to be having faith and believe in the universe at every given point of time कि he is having, वो मेरे पीछे है, मेरा he's looking after us, he's always covering our backs. वो हमको वो faith and believe, if something is not going right now, वो भी उनका एक कोई ना कोई उनकी प्लान के अंदर ही है, हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए आपका जो सबसे बेस्ट प्लान है उस पे एक्ट कर रहा होता है. So we need to have that faith. Let's come to belief systems now. So what is belief system? I think सबको ये पता होगा कि जो हमारी धारणाएं होते हैं, जो मान्यता होती है, जो from the time we are born, वो हमारे अंदर किसी ना किसी तरह इंस्टिल होती जाती है. We catch it, we grab it from our environment, from our teachers, from our parents, from our society. हमारे जो हम रिलीजन में पैदा होते हैं, जिस कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, so we start picking up some thoughts, some patterns जो हमारे लिए सही हो जाते हैं. Your belief system is correct for you. That doesn't mean कि वो मेरे लिए correct है. वो मेरा belief system है. Not every belief system is correct for everybody. एक होता है ना, बिल्ली ने रास्ता काटा, तो वो मेरा बिलीफ सिस्टम के हिसाब से इट इज वेरी रॉन्ग, कुछ ना कुछ अपशकुन होगा. लेकिन मेरे ही साथ कोई और एक बंदा चल रहा है, उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से इट इज नथिंग. सो वी बोथ क्रॉस ओवर. उसने अपना पूरा दिन कंप्लीट किया विदाउट एनी इंसिडेंट. मेरे साथ कुछ छोटा सा भी अनटवर्ड इंसिडेंट हुआ एंड आई एसोसिएटेड विद द क्रॉसिंग ऑफ द कैट, कि मेरा रास्ता काटा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ. राइट?
सो मेरा बिलीफ सिस्टम था कि वो मेरे साथ बुरा होगा तो हुआ, उसका बिलीफ सिस्टम था कि दिस इज नथिंग, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ. So these are thought patterns that we acquire from our childhood till we keep on acquiring. हम अब भी कुछ ना कुछ अपने लिए एक thought pattern acquire कर रहे होते हैं. महात्मा गांधी ने क्या कहा था? उन्होंने बोला था your beliefs come from your thoughts become your words become your action becomes your habits becomes your value, and your values become your destiny. सोचिए, हमारा बिलीफ सिस्टम से हमारा थॉट बनता है, एंड वो हमारे इतने नेचर में आते आते हमारे वैल्यूज बनते बनते हमारा डेस्टिनी बन जाता है. इट इज लाइक व्हाट वी वांट, आज जो हमें चाहिए, जो हमारी डेस्टिनी है, अगर वो हमारे बिलीफ सिस्टम से ऑपोजिट है तो क्या हमें मिलेगा? नहीं मिलेगा. बिलीफ सिस्टम, सपोज आज मेरा बिलीफ सिस्टम है कि टेंशन इज नेचुरल, स्ट्रेस तो लेना ही पड़ता है, बिकॉज स्ट्रेस आज के दिन में एक ड्राइविंग फोर्स है टू मेक यू मूव फॉरवर्ड. तो ठीक है, मेरा बिलीफ सिस्टम है टेंशन इज नेचुरल. यू विल नॉट बिलीव, अगर मेरा बिलीफ सिस्टम टेंशन इज नॉट नेचुरल है तो मेरे थॉट प्रोसेस में भी हर चीज में मुझे टेंशन होगी. मैं छोटी सी छोटी बात में बहुत ज्यादा सोच रही होंगी, एंड दिस विल रिफ्लेक्ट इन माय वर्ड्स. व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी आई विल बी अग्रेसिव, आई विल बी फुल ऑफ एंजाइटी. मेरे बातों में वो रिफ्लेक्ट करेगा. मैं हड़बड़ी में काम करूंगी, मैं टेंशन में काम करूंगी, एंड वो मेरी हैबिट बनता जाएगा. धीरे धीरे वो मेरा नेचर बनता जाएगा. मैं हर चीज टेंशन में करूंगी, बिकॉज व्हाट माय बिलीफ सिस्टम इज, टेंशन इज नेचुरल. एंड ऑफ द डे, कुछ वर्षों के बाद, व्हेन द टेंशन एंड द स्ट्रेस इज नेचुरल, तो मेरे अंदर बीपी आता जाएगा, लाइफस्टाइल डिजीजेस आती जाएंगी. मेरा काम, अगर मेरे जो टीम मेंबर्स है या मेरा जो स्टाफ है, मैं उनके साथ मेरा झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, कहीं ना कहीं रिलेशन में, हर चीज में वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा, टेंशन एंड स्ट्रेस, एंड इट विल बिकम वन विथ मी. इट विल बिकम माई डेस्टिनी दैट मेरा टेंशन इज नेचुरल, तो मुझे लाइफ में हर चीज में टेंशन होगा. बट व्हाट डिड आई वांट? मेरा गोल क्या था? आई वांटेड टू बी हैप्पी, आई वांटेड टू बी पीसफुल, आई वांटेड माय थिंग्स टू हैपन जस्ट नेचुरली. तो मेरा एंड गोल वाज हैप्पीनेस, पीस एंड जॉय था, एंड मेरा बिलीफ सिस्टम था दैट टेंशन इज नेचुरल. सो वी आर क्लैशिंग हियर. Now, if I make my belief system that I am peaceful, my work just happen by itself. मुझे एफर्ट ही नहीं लेना पड़ता, मेरा काम हो जाता है. Happiness and joy is natural to me. मैं काम करते वक्त बहुत ही शांत मन से काम करती हूँ. If we keep telling ourselves this, if this is our belief system, believe me, ये ऐसा होता है. मेरे साथ, नॉट फॉर टेंशन, बट एक और चीज में मेरे साथ क्या हुआ था, तो पहले मुझे लगता था स्टाफ पे या किसी और पे या बच्चों पे बिना गुस्सा करे वो काम नहीं होता. इफ यू आर नॉट शोइंग इरिटेशन, या फिर आप गुस्से से जब तक नहीं बोलोगे, आपका काम नहीं होगा. बहुत टाइम तक ऐसा किया. सिंस वी हैव कम टू दिस जर्नी, धीरे धीरे कोशिश करी अपने आप को बोलने के लिए कि काम आराम से भी हो सकता है, बिना गुस्सा करे भी आपका स्टाफ काम कर सकता है. मैंने ये बार बार बोला, एंड इट्स ऑलमोस्ट 4-5 months नाउ. 4-5 months ही हुए हैं, लेकिन इट्स 4-5 months नाउ, जबकि मुझे गुस्सा ऑलमोस्ट 70%, आई विल नॉट से 100%, 70% गुस्सा डेलीगेट, जब काम डेलीगेट करती हूँ उसमें 70% गुस्सा खत्म हो गया, एंड माय वर्क इज गोइंग ऑन पीसफुली, एफर्टलेसली. आई मीन, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वंडरफुल कि कैसे अपने आप काम हो जा रहा है. कभी कभार गुस्सा करना पड़ जाता है, लेकिन इट इज इन दैट मोमेंट, उसके नेक्स्ट क्षण वो गुस्सा याद नहीं रहता. इट इज सो ब्यूटिफुल.
So we need to first we need to when if you want happiness, joy, तो हमें ये देखना है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं उसमें हिंडर तो नहीं कर रहा है, कहीं हम हमारे लिए वो ब्लॉकेजेस का तो काम नहीं कर रहा है. सपोज हमें बहुत पैसे कमाने हैं, हमें एक बड़ी सारी गाड़ी लेनी है और उसके लिए पैसे नहीं है, या फिर हम बहुत कर्जे में हैं, आज हमारे पास पैसे नहीं है, तो वी हैव टू सिट डाउन एंड सी कि हमारा बिलीफ सिस्टम पैसों के बारे में क्या है. हम पैसों के लिए बचपन से आज तक हमें क्या सिखाया गया है? क्या हमें ये सिखाया गया है कि पैसे पेड़ों पे नहीं उगते? क्या हमें ये सिखाया गया है कि कड़ी मेहनत करने से ही पैसे मिलते हैं? या पैसे को मतलब संभाल के रखो, आप बिना सोचे समझे पैसे खर्च करोगे, आपके पास कुछ नहीं बचेगा. हमें क्या सिखाया गया है? पैसों के मामले में हमारी बिलीफ सिस्टम क्या है? हमारी फीलिंग्स क्या है पैसों के लिए? क्या हम घबराते हैं पैसे से? क्या हम डरते हैं कि हमारा पैसा खत्म हो जाएगा? What is the feeling that we have associated with money? What is the feeling that we have associated with everything that we do? एक तो आपने कई बार देखा होगा ना, एक बंदा बहुत हैप्पी को लाइफ है, एक बंदा बहुत टेंशन में है, सेम काम दो बंदे करते हैं, किसका काम बेटर होगा या फिर किसका काम अच्छी तरह कंप्लीट होगा? जो बंदा हैप्पी को लकी है, आई एम श्योर. तो उसका बिलीफ सिस्टम है कि हर काम अच्छे से सुचारू रूप से हो सकता है, लेकिन हमको हमारी धारणाएं क्या है वो देखना पड़ेगा. बिलीफ सिस्टम कैन बी इवन एम्पावरिंग. वी हैव दिस थॉट ना, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस. ये अगर हमने पकड़ के रखा हुआ है तो छोटी छोटी फेलियर्स पे हम कभी हताश नहीं होंगे, because we know that we are learning, it is a learning process and we'll get better. So belief systems are not always negative. I will, and it has to happen. ऐसा belief system भी तो हम रख सकते हैं ना अपने लिए. So it is up to us what we feel and what we believe in. Can we ask one participant today to come up with maybe a breakdown in their life or a challenge in their life, या किसी भी एक एरिया में आप अपना बिलीफ सिस्टम ढूंढना चाहते हो कि मैंने अपने लिए क्या फॉर्म करके रखा है? आई वुड रिक्वेस्ट somebody to unmute and ask so that we can find out कि आपका क्या बिलीफ सिस्टम है. Anybody? I didn't get your question. जैसे अब ये क्वेश्चन हो सकता है ना कि हम पता कैसे चलाएं कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है. Yes, ma'am. Yeah, मैं इसमें बोलना चाहूंगी. हम जब छोटे थे तो ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम ऐसा था नहीं, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद में ये एक मेरी मदर इन लॉ का बिलीफ है कि मंगलवार को कोई काम करो तो वो होता नहीं और करते नहीं हम कोई नया काम. इट्स ओके. तो कहीं ना कहीं आज को 31 इयर्स हो गए शादी के, और ये ऐसा बैठ गया है मेरे दिमाग में कि सही में मंगलवार को कोई काम होता नहीं है. एंड मैंने इसको बहुत बार ट्राई करने की कोशिश की कि नहीं, इतना सारा मैं मैनिफेस्टेशन, इतना क्लासेस करती हूँ. आई एम माई सेल्फ अ एनर्जी हीलर, मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ सिंस लास्ट 22 ईयर्स. तभी भी मैं इसको नहीं बदल पाई, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश भी करी इसको कि नहीं ये कुछ होता नहीं है. वाकई में मैंने जिस दिन भी ये मंगलवार को कोई नया काम शुरू किया है तो मैं देखी कि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग ही, सबकॉन्शियस माइंड ही ज्यादा काम कर रहा है, हावी हो गया है और वो काम नहीं हो रहा है. आई वॉन्ट टू चेंज दिस विद दिस law of attraction and manifestation, and whatever I am practicing, I've started with this magic book. I just want to change this belief कि नहीं. तो आपको पता है कि योर बिलीफ इसके मंगलवार को काम करने से नहीं होता है. दिस इज योर बिलीफ सिस्टम. Yeah. As simple as that. Start affirming कि मैं मंगलवार को जो भी करती हूँ वो बहुत सक्सेसफुल होता है, वो बहुत फ्रूटफुल होता है. मेरा सारा काम जो भी मैंने मंगलवार को शुरू किया वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया. आप अफर्म करिए थोड़े दिन तक अपने आप को हर वक्त ये बोलिए, मे बी लिखिए. जैसे हमारा वो बिलीफ सिस्टम बना था
हमारा ये बिलीफ सिस्टम बनेगा. Yeah, yes. It has taken that many years for you to form that belief system, so this might also take some time to form Exactly. this I belief have to system. change this. हाँ, तो I have to आप ये change भी this. सोच के चलो ना, मंगलवार तो बहुत जन तो शुरू करते हैं लोगों का, तो अभी बालाजी का दिन है आज। हाँ, बालाजी बोलते हैं, बालाजी शुरू करते हैं, वही लेकिन तो। पता नहीं क्या इतना करते करते कैसे एकदम हम भी इसमें आ गए कि, और सच में देखे 2-3 बार देखा नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि सही में यार ये तो नहीं क्योंकि वो होता है आप मेरा। सोच रहे हो ना, वो आपका बिलीफ हाँ, है, वो बस। आपको पता है सबकॉन्शियस और अब माइंड मैं में कि ट्राई वो भी नहीं नहीं करती होगा. हूँ। हाँ, अब मैं ट्राई भी नहीं करती हूँ मंगलवार का कोई काम करने की। कोई छोटा छोटा काम से शुरू कीजिए कि वो गड़बड़ Not हो even गया that. तो चलेगा। आई एम अ क्रोशेटर, मैं हैंडीक्राफ्ट का, मैं कोई नया आइटम शुरू नहीं करती हूँ उस दिन बनाने का, क्योंकि बनाया तो ऐसे नहीं है कि मंडे को शुरू किया तो पड़ा है कोई प्रोजेक्ट, वो ऐसे बहुत सारे रहते हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि वेडनेसडे को शुरू किया तो कंप्लीट हो गया, हो नहीं हुआ, ये हुआ है, लेकिन भी पता नहीं क्यों, बस ये बिलीफ सिस्टम मुझे चेंज करना है, मेरे दिमाग को खाली करना है। आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे कुछ नया शुरू कीजिए आज. आज मैं करूंगी। Can I add something here? Can I add something here? Yes, भैया. You can say a small prayer. You can say a small prayer that all the thought forms given by other people regarding Tuesday and created by myself is getting disintegrated. और आप जैसे बोल रहे हो ना कि मेरे साथ हमेशा गड़बड़ हो रहा है, बोले आज से ठीक हो रहा है. Start saying present tense. Okay, जो था चला गया, आज से वो ठीक हो रहा है and होगा. Right? Start believing in that. Yes, sir. All thought forms given by my in-laws or all my family members regarding Tuesday is being disintegrated now, in full belief and in full faith. So be it. Now you are good to go. Yes, sir. Yes. Thank you so much. Any other member जिनके लाइफ में कोई एक ब्रेकडाउन है या फिर उनको कहीं कुछ परेशानी आ रही है जिससे हम उनके कोई कहाँ पे वो परेशानी शुरू हुई वो पता कर सकते हैं. Any other member who would like to share? Yeah, can I? This is Ankita Bansal from Jaipur. Yes, please. Yeah, I have the same belief. जब तक गुस्सा नहीं करो काम नहीं होगा. With my husband, with my family, with my kids, I have the same belief. जब तक गुस्सा जोर से नहीं बोलो तब तक काम नहीं होता या जब तक चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती है. This is same situation even I am going through and it is happening on daily basis with me. आप बिलीव करो, जस्ट अफर्म फॉर योरसेल्फ कि मेरा हर काम बहुत ही अच्छे से और प्यार से हो जाता है, मुझे जोर से बोलना भी नहीं पड़ता है. जस्ट अफर्म और आपको आपका होगा. डू इट, से इट एज दो. जैसे हम अफर्मेशंस, अब हम थोड़ा आगे हम समझेंगे इस बात को कि हाउ टू यूज अफर्मेशंस टू नेगेट योर लिमिटिंग बिलीव्स, ये हम आगे समझेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो आपके जो भी एरिया में ब्रेकडाउन है ना, सपोज पैसों के मामले में ब्रेकडाउन है, आपके पास पैसे ठहरते नहीं है या फिर आते हैं लेकिन वो आप बहुत जल्दी खर्च कर देते हो या व्हाट एवर मे बी योर ब्रेकडाउन, आप उस ब्रेकडाउन के बाद आप यू गो बैकवर्ड्स. आप उसके पीछे जाके आप सोचो कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो. रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप में आपकी क्या धारणाएं हैं, आपने अपने लिए क्या सच बना रखा है. लड़कियों के लिए हम बहुत सारी धारणाएं पहले बना के रखते थे जो अब कैसे ब्रेक हो गई हैं. All those belief systems have been broken slowly, steadily, but they have been broken. So we can also do it for ourselves. हम कैसे, एक और इंस्टेंस मुझे यहाँ ध्यान आ रहा है कि हम बच्चों में, जैसे हम बच्चे थे तो हमने एक्वायर किया, वैसे ही आज के दिन हम अपने बच्चों में कैसे बिलीफ सिस्टम को घुसाते हैं, कैसे उनमें उस बिलीफ सिस्टम को उनके लिए वो सच बनाते हैं. आई थिंक ये 100% लोग हम मेरे से अग्री करेंगे कि अगर एक छोटा बच्चा गिर जाता है या चेयर से उसको लग जाती है तो व्हाट इज आवर फर्स्ट रिएक्शन? हम उस चेयर को मारते हैं, उस फ्लोर को मारते हैं कि शिट, क्यों मारा तुमने इसको चोट लग गई बच्चे को. एंड बच्चे को, क्या तुम्हारी गलती नहीं थी, चेयर की गलती थी. we try to punish the chair, blame the chair. क्या हमने किया? आई थिंक we all can raise our hands कि हमने कभी ना कभी तो ये चीज करी है.
कि हम किसी और को ब्लेम करें वो बच्चे को चुप कराने के लिए। हम उसमें क्या बिलीफ सिस्टम डाल रहे हो, हम क्या डाल रहे हैं उसमें बिलीफ सिस्टम कि आपकी परेशानी जो है वो किसी और की वजह से है। वी हैव ट्राइड टू मेक दैट चाइल्ड बिलीव कि ब्लेम करना इज नेचुरल, नॉर्मल। आप किसी और को ब्लेम कर सकते हो अपनी परेशानी के लिए। इतनी छोटी छोटी बातें पता नहीं कौन सा किस तरह की एक मन में बिलीफ सिस्टम को बना देता है। when वो बच्चा जब बाटी चम्मच से खेलने से भी बहुत खुश है, हम ना जाने कितने ब्रांडेड टॉयज ला के देते हैं। वो मांगता एक है, हम ला के देते हैं 4। और जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उसको ब्लेम करते हैं, बहुत फंसी है, ये बोर हो जाता है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, इसको वैरायटी चाहिए। So we as parents, we have put all those small belief system into our children. जब वो क्लास से घर आता है रिपोर्ट कार्ड लेकर और बोलता है मुझे 90% मिला, आप बहुत हैप्पी हो, वाओ यू लवली। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहता है, तुम्हारी फ्रेंड को क्या मिला? और द मोमेंट चाइल्ड सेज 95%, तो तुमको 90 क्यों मिला? देखो तुम्हारे फ्रेंड को 95 मिला। हमने कंपटीशन सिखाया, हमने कंपैरिजन सिखाया, हमने उनको बोला कि आप जैसे हो वैसे इनफ नहीं हो। आर वी नॉट पुटिंग इट इनटू देयर हेड्स? आर वी नॉट क्रिएटिंग दिस एनवायरनमेंट फॉर देम कि वी नीड टू compete, कंपैरिजन, जेलेसी, वी नीड टू बी केयरफुल कि और यही बिलीफ सिस्टम हम ये भी डाल सकते हैं अपने बच्चों के अंदर कि आप जैसे हो, हर एक बच्चे में अलग अलग टैलेंट होता है, आप जैसे हो वैसे आप बहुत अच्छे हो, आप में जो अच्छाई है उसको एक्सेल करो, उसको और शाइन कराओ। कैन वी ऑल नॉट डू दैट? एटलीस्ट ये अवेयरनेस तो आई हमारे अंदर कि हमारी धारणाएं कितने लंबे अरसे तक हम पे इम्पैक्ट करती हैं। बचपन से सिखाई गई बातें हम पूरे बुढ़ापे तक उसी को सच मान के उसी पे काम करते हैं। मुझे तो अभी भी याद है, पैसे झाड़ पे नहीं उगते इज इम्प्रिंटेड इनटू माय हेड। सोच समझ के खर्चा करो, यू नीड टू सेव, क्या पता क्या मुसीबत आ जाए। डोंट वी ऑल हैव दिस बिलीव्स? आज आप मतलब आप अपने खुशी के लिए, आप अगर बहुत खुश हो तो नजर लग जाएगी आपको। कैन वी रिलेट टू दिस काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम? मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, आई कैन नॉट प्ले दिस गेम, या इट इज नॉट राइट फॉर मी टू लाफ आउट लाउड बिकॉज आई एम अ गर्ल। ये बिलीफ सिस्टम्स एसोसिएट कर पाते हैं हम? ये भी इम्प्रिंट किया गया है कि तुम लड़की हो, जैसे मेरी बेटी को ही बोला गया था तुम लड़की हो, छोटी हंसी हंसो, तो कहती है हम तेलुगु है तो तेलुगु में चिन्ना नव्वु में छोटी हंसी। तो घर में आके कहती है मम्मी छोटी हंसी क्या होती है? मैंने कहा कि एकदम जो होता है ना कि हाँ हाँ दिल खोल के जो हंसे वो ना हंस के एक स्माइल दे करके बैठ जाओ, तो याद शायद यही होगा छोटी हंसी। कहती मम्मी ऐसा क्यों, कि मैं क्यों हंसे छोटी हंसी हंसो, और क्यों नहीं अच्छे से खुद दिल खोल के क्यों नहीं हंस सकती हूँ? आजकल के बच्चे बहुत लॉजिकल है, हमारे समय से हम लोग उतने लॉजिकल नहीं थे, जो बोला गया हम मान गए। हमारे में एक और कहावत है, बिलीफ सिस्टम जो कहते हैं, ये जो पहले जो दरवाजे होते थे ना उनकी कुंडियां होती थी गोल, तो हमारे दादी और मेरी बुआ लोग कहती थी कि वो कुंडी मत चटकाना, जोर से मत हिलाना, चोर आ जाएंगे घर पे, और हम डर जाते थे। एंड वी यूज्ड टू कीप सिट क्वाइटली। बट वही मेरे मेरे बच्चे कहने लगे मम्मी हम अपने घर की कुंडी चटका रहे हैं और कहीं और चोर को कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में कुंडी चटक रही है? तो आई देन वी थॉट कि सही बात है कि हम उतने लॉजिकल नहीं थे, आजकल के बच्चे बहुत लॉजिकल है। ये जब हम ये हमारा बिलीफ सिस्टम एक और है ना कि मैं तो पानी भी पीती हूँ तो वो मेरे शरीर को लग जाता है। इमेजिन द टाइप ऑफ बिलीफ सिस्टम्स वी हैव। तो हम तो अट्रैक्ट ही कर रहे हैं ना, हम सांस भी लेंगे तो वो भी हमारी बॉडी को लग जाएगा, उससे भी हम मोटे हो जाएंगे। सो नाउ वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है जो हमें रोक रहा है आगे बढ़ने से, या फिर हमारे ड्रीम को हमारे पास मैनिफेस्ट होने में वो ब्लॉक कर रहा है।
अगर सपोज नहीं हो रहा ना आपका मैनिफेस्टेशन, आपके ड्रीम्स नहीं मिल रहे, बहुत दिक्कतें आ रही है, ट्राई टू गो बैकवर्ड एंड सी कि कहीं ना कहीं कोई बिलीफ सिस्टम तो नहीं है आपके अंदर जो आपको ब्लॉक कर रहा है, जो आपको उस चीज को रियलाइज करने में दिक्कतें पैदा कर रहा है. If we go back and see, we will surely realize कि कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज, वो धारणाएं बैठी हुई है जिनके कारण हमारे पास वो ड्रीम हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं. So for all this we can have affirmations. We all now know what is affirmations, how to make affirmations. आप अपने अपनी बिलीफ सिस्टम के लिए, आपको ट्यूसडे के लिए बनाना है तो आप ट्यूसडे के लिए अफर्मेशंस बनाइए कि I whatever I start doing on Tuesday is super successful. I am super successful starting my business on Tuesday. आपको जो बनाना है, it is for your, आपकी affirmations आपके हैं. Some general affirmations we have is like, you know, some positive affirmations is, I am the creator of my life. My life will be what I create with my thoughts. So this you can keep reminding yourself. Every day, in every way, I'm getting better and better and better. These are some general affirmations that we have. I am living an extraordinary life. We can affirm all this every day because I am born to live a fulfilling life. आप मतलब आप दावा करते हो, I am born to live a fulfilling life. I only attract what is good for me and there is abundance of goodness in the nature. कभी कभी हमें लगता है ना कि इसको इतना पैसा मिल गया, मेरे पास, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं. हमें ये स्पेशली पैसों के मामले में आई थिंक हमारी बिलीफ सिस्टम हमेशा लैक की बनाई हुई है. हमेशा बताया गया है कि पैसों की कमी है या इनफ पैसे नहीं है सबके लिए. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो दैट देयर इज अबंडेंस ऑफ money in the universe. It is just that we need to clean our vessel, our vibration, our subconscious mind, our belief system to attract it. And जैसे कल सरिता भाभी ने बोला ना, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना कि मैंने अपना ड्रीम बना लिया, मैंने बोल दिया कि मेरे को इतना बड़ा बंगलो चाहिए and I'm sitting with good vibration. We need to work for it. We need to go ahead and do things what is required to be done. But at the same time, our energies, our vibration, our subconscious mind need to vibrate at the same frequency as the bungalow, as the money, as the relationship, as what we want, whatever may be our dream. So should we summarize it, what we have done today? आज हमने बिलीफ सिस्टम पे बात किया कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं ये हमारे रास्ते का रोड़ा तो नहीं बन रहा है, हमारे मैनिफेस्टेशन के रास्ते में कहीं ये हमें अटका तो नहीं रहा है. बिलीफ सिस्टम कैन बी वेरी एम्पावरिंग ऑल्सो. It can give you lots and lots of motivation. So let's have all those affirmations which is motivating for us, which will make us move forward. And we have to align. आप करोड़ों का ख्वाब देख रहे हो लेकिन बिहेवियर चिंदीगिरी का कर रहे हो. Is it your behavior? Is it your vibration that you are projecting to the universe कि आपको करोड़ों चाहिए? We need to behave in the manner what we in the same, align our behavior to what we want, right? And then we need to be very clear in our goals and vision what we want. We need to have faith and believe on the universe कि ये हमें मिलेगा ही मिलेगा. एंड भगवान हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही प्लान करता है. Whatever is happening with me today is at this moment best for me. Can we not have this faith in our mind at all point of time? The universe is always covering our backs. So that's all we can have. add a little on like one example तुम जैसे बोल रही हो समझ में आ रहा है ना, जैसे किसी किसी को रिलेशनशिप्स को लेके रहते हैं. सपोज यू आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, मे बी अ मैरिटल वन और विथ योर चिल्ड्रन, तो यू कैन गो बैक एंड थिंक हाउ डिड यू सी योर पेरेंट्स. क्या आपने उनको झगड़ते देखा या आपने उनको कैसे देखा? वो आपका एक बिलीफ बन गया. या किसी को आपने बोलते हुए सुना कि हाँ शादी के 1-2 साल तक तो ठीक चलता है, उसके बाद तो झगड़ा होना ही है. और did you feel कि बच्चे तो सुनते ही नहीं है? There's always a generation gap. I grew up with this belief कि generation gap तो होता ही है बच्चों. So maybe because I felt that generation gap
with my parents. So I start feeling it with my children, jabki maybe it is not there. तो अपने relationships में भी आप ये check कर सकते हैं. किसका आ रहा है, सामने आ नहीं रहा है. तो relationships is also very important, बहुत जिसमें belief system बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. How what you believe, आप कैसे कैसी धारणा में भी कोई पिक्चर नहीं देखी हो कि यू नो दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन वाली पिक्चर थी ना, क्या पिक्चर थी, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन फादर एंड सन, शक्ति वाज इट, व्हाट वाज द रिलेशन. सो हाँ, तो मे बी सम पीपल माय एज विल रिमेंबर इट बेटर. तो उसमें द रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग. सो मे बी व्हेन यू सी दैट यू इनवाइटेड, वो देख देख के आप अपनी लाइफ में वैसा रिलेशनशिप बना लेते हो कि हाँ फादर और सन में तो बनेगा ही नहीं. सो इवन इन योर रिलेशनशिप्स प्लीज लुक बैक, बिकॉज ये है ना, हम लोग एक कोई आइडेंटिफाई करें, हम लोग मेडिटेट करके उसको जाके वी कैन हेल्प. राजन सर हैज टॉट अस वेरी नाइस टेक्निक्स कि उसको जाके, दोज ऑल ऑफ यू हु हैव अटेंडेड राजन सर्स क्लास, यू नो कि वो कैसे जाके उसको वाइप आउट करते हैं इस बिलीफ को एंड रिप्लेस करते हैं विद अ पॉजिटिव अफर्मेशन. बट दिस इज सो इंडिविजुअल. इफ एनीवन वांट्स, आई एम श्योर शालिनी कैन डू इट, बट इट इज वेरी वेरी इंडिविजुअल कि एक पर्सनल अगर कोई लेना चाहे तो वी कैन डू अ स्मॉल प्रैक्टिस हियर. Yes, I mean somebody who doesn't know कि उसके belief system में ऐसा कोई अटक है क्या, वो मतलब उनको अभी तक समझ नहीं आया. जैसे अभी तक जो भी एग्जांपल्स आए उनको पता था कि मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि मेरे लाइफ में ये ब्रेकडाउन है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम इसमें अटक डाल रहा है, we can identify, we can try to find out, we can go back in the time and go and find out how which belief system that person is carrying. Sanli, can I take 5 minutes now? Yes, 500? Yes. Yes. See, firstly, I was seeing the आप लोग की जो विश आपने फेसबुक में डाली है, तो वहां पे कुछ एक मिस्टेक्स या कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं. सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा परफेक्ट विश जो डाली है वो अकीला गणेश जी ने डाली है. सबसे ज्यादा अपने को ध्यान रखना है, जब भी हम कोई ड्रीम देख रहे हैं तो हमको उसका टाइम पीरियड देना जरूरी होता है कि हमको कितने टाइम पीरियड में घर चाहिए, कितने दिन में चाहिए और कितना बड़ा घर चाहिए. देखिए, आपको बंगला चाहिए, आपने लिखा है नीड अ बंगलो, ठीक है, डिवाइन ने सुन लिया, वो को 10 साल बाद भी दे सकता है, 20 साल बाद भी दे सकता है, 30 साल बाद भी दे सकता है और अभी भी दे सकता है. बट यू हैव नॉट गिवन हिम अ कंफर्म टाइम, मेरे को 2 साल में बंगला चाहिए. So this is also very important that you quantify the time also. आपको कितना चाहिए, किस लिए चाहिए. Then questions come, किस लिए चाहिए. आपको मिलेगा तो I'll live a happy life. एक जैसे अभी एक affirmation था, I want a happy life. अब जब हम manifestation कर रहे हैं तो the affirmation will change. I am living a happy life. It will change the very moment I am living a happy life now. अब was और will भी नहीं रहेगा. I am already living a happy life. This is very 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 important. Right, Sanli? Yes, भैया. I am living a happy life. और जो ये beliefs होती है ना, कि previous beliefs जो रह रही हैं और जो अभी मेरे dreams को affect कर रही हैं, उसके लिए let's do a small prayer for just 2 minutes and सारा wipe out हो जाएगा. पुराना कोई भी गार्बेज है जो आज आपकी ड्रीम मैनिफेस्ट होने के लिए अगर वो रोक रहा है, just will do a small prayers now and वो पूरा का पूरा गार्बेज, पुराना गार्बेज निकल जाएगा and every one of us will start afresh. Are you ready to do it? Right? Can we do it? You can unmute yourself, right? Don't wait. Yes, yes. Yes, sir. Yes. 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 So first close your eyes. First close your eyes. Take some deep breaths. Take some deep breaths. गहरी सांस लीजिए. अपनी छाती से नहीं, पेट से सांस लीजिए. जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो आप देखेंगे उसका पेट ऊपर नीचे होता है, उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं होती. वैसे सांस लीजिए. आपका पेट
अंदर बाहर हो रहा है। आप गहरी सांस ले रहे हैं। अब अपने उस गोल को, अपनी उस डिजायर को, अपने उस ड्रीम को याद करिए जो आप पाना चाह रहे हैं। वो सोच में ये रखिए कि वो डिजायर आपकी पूरी हो गई। आप अपने नए घर में रह रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप अच्छे हो गए, आपके बच्चे आपकी बात सुन रहे हैं, आपके घर में पैसों की बरसात हो रही है। सांस लेते रहिए और सोचते रहिए। अब देखिए, अगल बगल कोई खिड़की है क्या? अपने सपने में देखिए, अपनी सोच में देखिए, अगल बगल कोई खिड़की है तो उस खिड़की को खोलिए, उस खिड़की का कुंडा खोलिए, खिड़की को ओपन कर दीजिए और बाहर की फ्रेश हवा, ताजा हवा अपने घर में, अपने अंदर आने दीजिए। जैसे जैसे ये फ्रेश हवा आपके अंदर आ रही है, आपके अंदर की सारी घुटन निकलती जा रही है। आप एकदम सफा हवा में, ब्लेस्ड हवा में सांस ले रहे हैं। वो सांस आपके शरीर के कण कण में जा रही है, और जो भी यूज्ड अप एनर्जी थी या सोच थी, वो आपके सांस के साथ बाहर निकल रही है और उसकी जगह फ्रेश सांस ले रही है। वो खिड़की से एक अजीब सी रोशनी, धुंधली सी रोशनी, नीली रोशनी भी आपके ऊपर पड़ रही है। आपके सिर पे, आपके चेहरे पे, आपके शरीर पे, आपके पाँवों पे, आपके पूरे चेहरे पे एक हल्की सी नीली रोशनी, जैसे कोई मोर का रंग हो, वो रोशनी आपके शरीर पे पड़ रही है। आपके शरीर को पूरा धुंधला करके सफा कर दे रही है। आपको सांस लेना बहुत बहुत आसान हो गया। आपकी सोच एकदम सफा हो गई। अब आप अपने उस गोल के बारे में सोचिए, इसके बारे में आप सोच के ये प्रोग्राम कर रहे थे, ये सेशन अटेंड कर रहे थे। मेरा शरीर, मेरे अंदर की सारी बीमारियां निकल गई, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो गए, मेरे को नया घर मिल गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरे बच्चे मेरी सुन रहे हैं, मेरे अंदर से सारी बीमारियां निकल गई। धन्यवाद। ये हवा, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, या धन्यवाद करता हूँ कि मेरा शरीर आपके साथ नियमित एक हो गया और आपने मेरे को आशीर्वाद दिया है। अब कोई भी चीज मेरे साथ नहीं है जो मेरे सोच को गलत तरीके से ले जाती है, और आज जो मैं डिजायर या गोल है उसको होने से रोक रही है। मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरी परमात्मा तक मेरी सफाई हो चुकी है। मैं भगवान का एक अंश हूँ और मैं पवित्र हूँ। और जो भी सोच मेरी या किसी और की जो मेरे अंदर थी, वो अब निकल चुकी है, और मैं पूरी तरह से अपने गोल्स की तरह समर्पित हूँ, और मैं वो गोल्स पूरे हो रहे हैं। और जैसे जैसे ये गोल पूरे हो रहे हैं, मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, मैं लोगों की और से ज्यादा सेवा कर रही हूँ, और ये तरीके जो मैंने सीखे हैं लोगों को बता पा रही हूँ और लोगों को समझा पा रही हूँ। फिर से अपनी सांस पे ध्यान दें, गहरी सांस लें, पेट से सांस लें, और वो खिड़की को खुली रहने दें। और ऐसा सोचिए, जब भी मेरे को जरूरत हो, ये खुली हवा, ये खुली रोशनी, परमात्मा की रोशनी मेरे ऊपर पड़ेगी और मेरे को गाइड करती रहेगी। आज कर रही है, कल भी करेगी, परसों भी करेगी, और हर जिंदगी में करेगी। मैं परमात्मा की रोशनी के लिए हमेशा हमेशा समर्पित हूँ, और हमेशा हमेशा
वो मेरे ऊपर आती रहे। मैं समर्पित अपने आप को परमात्मा के काम के लिए समर्पित करती हूँ। So it is, so it be. Now slowly open your eyes with a big smile. हंसते हुए आंखें खोलिए। Take some deep breaths. अच्छा लग रहा है? How are you feeling? कैसा लग रहा है? आप बोल सकते हो, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। Wonderful. Wow. Amazing. Very Very nice and very relaxed. अब ये रिलैक्स जब रहेगा तो यू आर हैप्पी। आपको कोई चीज नहीं चाहिए खुश रहने के लिए। ये हवा, ये रोशनी ही अपने आप में समर्पित है आपको खुशी देने के लिए। आप अभी खुश हो, देखो आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, गाना नहीं सुन रहे हो, लेकिन तब भी आप खुश हो। क्यों? आपका मन शांत है, आपका शरीर शांत है, आपको लगा कि अब मैं भगवान के साथ एक हूँ। जिस मोमेंट में ये लगता है आप खुश होने लगोगे, आप हमेशा खुश रहते रहोगे, और जैसे ही आप खुश रहना चालू करोगे आपके सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट होने लगेंगे। राइट? सो व्हाट्सएप में, जो फेसबुक में आपने अपने गोल्स डाले हैं, उसमें टाइम पीरियड डालिए और कितना चाहिए ये भी डालिए। तो हम जो ब्लेसिंग करते हैं उसका असर आपको इमीडिएटली मिलने लगे। थैंक यू, थैंक यू। Suddenly you can take over. Thank you One very much for question. the amazing, question. amazing blessings. Thank you so much. Vivek bhaiya, one question. Yes, please. कितना चाहिए in the sense square meter wise or floor wise? Like what? Like if my dream is I need a house, so what should be my demarcation? So demarcation में I need a 10-bedroom house, I need a bungalow with this much house, ये garden है, वहाँ सब कुछ देखो, garden देखो, वहाँ पे dining room देखो, वहाँ पे bedrooms देखो, वहाँ पे चिल प्ले एरिया देखो, सब कुछ देखो, यहाँ झूला लगाऊंगी, यहाँ पे शावर होगा, यहाँ everything you visualize, और No, but वैसा ही when I होगा। post it in the FB, what should I post like? My dreams that I have visualized will manifest in this particular period. Done. Thank you. Right? Right. इसमें I'll just appreciate Madam Akila. She has really written it very well. I need a 60 kg weight by November. That is the way you give a time period. क्या चाहिए? Quantitative रहना चाहिए, time period देना चाहिए. Right? Vivek ji, Akila ji has been our participant since our first session 2 years back, and she's So she knows. amazing, amazing. वो हम लोग सबको जिस तरह से inspire करती है ना, unbelievable. Yeah, I can see the writing on the Facebook. I could make out that he knows what energy, how the energy is working. Otherwise, तो इतना properly written, बहुत अच्छा लगा देख के. And उसमें कुछ लोगों ने एक चीज और है, जैसे I am in लिखा है, तो somewhere we can understand क्या लिखा है. So don't say कि I want to live separately with my family. हाँ, अपने joint family से अलग हो जाए. Please don't write, don't think such imaginations मत दीजिए. Think we are in a good family together. अलग होना मत सोचिए. सबके साथ रहना सीखिए. That is the lesson we need to learn. Right? आप टाइप नहीं कर रहे हो, ये नहीं कि वहां पता नहीं चल रहा है. We can understand what you have written. Even you are typing I am in, what you are typing we know somewhere कि आपने क्या लिखा है वहां पे. So you have to be very careful. किसी को गलत नहीं करना है. अपने को चाहिए बट दूसरा का नहीं चाहिए. अपने को अपना लिए चाहिए, किसी का छीन के नहीं चाहिए. अपने को अपनी खुशी चाहिए, दूसरे की खुशी मार के नहीं चाहिए. राइट? Sarita ji, I have a question. This is Yes. Mrinalini. Yes, Mrinalini. Can I manifest for other? Like means for my son. I want him to get a Olympic medal. So that is So- my dream. Put yourself in the dream, okay? Put yourself in the dream. The dream has to start with you. अभी हम लोग बस सीख रहे हैं. The Okay. way we are learning now, we are just learning for पहले खुद के लिए तो कर लें. So, but if you really want to manifest this, put yourself in the picture that you are with your son when he's getting the award. Right. Right. So not कि वो गया and उसको award मिल गया. Correct. You should be And- part of the dream. And you visualize the medal is
there, framed in front of you inside your bedroom or inside your dining room now only. That is still framed. And give a time period there also. Date देखिए कि कब वो इस month का है, यहाँ का है. Just give that minute things देखना चालू करिए. It will manifest. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. In your dream, if you write your feelings now, what you felt when you first held that medal, that will also make a huge difference. Correct. तो मैंने ये विजुअलाइज किया कि मैं वो मोमेंट पे वही उसके साथ and I started crying the moment he got it. So I don't know whether it's correct or not, but I have felt like that. Your feelings is your feelings. There is nothing right or wrong in it. Okay. Give a time period now. In next 5 years, next 6 years, next 8 years, next 2 years. Start Right. giving a time period. That is important now. Right, sir. Thank you. Yes, we've leveled up now. हम लोग first level में बोलते हैं ना कि just write your dream, don't bother about time. But now we have leveled up. 2 साल हो गए, most of us have been practicing. So with this level, we have to now manifest with time. And so correct your writings and words on the Facebook. You done this mistake, correct that. Give a time period now. And quantitative. Okay. Vivek bhaiya, I want to ask you something. Yes. Actually, I have a bird at home. So आज सुबह 8 बजे तो वो एकदम ही ठीक थी. मैं जब उसको खाना दी तो around 8:45 I saw she was shivering. तो मैंने जैसे हाथ में लिया, वो बहुत देर तक शिवरिंग कर रही थी. फिर मैंने उसको पानी वानी पिलाया and within 10 minutes I saw her that she is gone in my hand. So I was feeling very low मतलब morning में. Then again I just thought कि चलो maybe that was the last. She wanted to have water from my hand. So what's your question, Divya? Means I was feeling very bad कि वो मेरे हाथ में चली गई मतलब. Why should you this? I mean, Vivek ji will answer this, but don't see the negative feelings. Yes. See, negative feeling is, are you feeling guilty somewhere? No, I'm not feeling guilty. मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ गलती कर दिया क्या. I don't know मतलब why. That's what I'm saying. That's what I'm saying. Are you feeling guilty? No, I was just feeling कि वो मेरे हाथ में क्यों गई मतलब why. Are you feeling guilty? Except No. Then why you're feeling bad? मतलब वो चली गई ना, इसलिए मेरे को अजीब सा लग रहा था. That's it. This is a very important lesson for every one of us, right? We need to understand our feelings very well now. अपने को हर चीज में ये समझना पड़ेगा कि suppose ये तो चिड़िया का एक example हो गया. I'll give an answer in a very grosser sense, big sense. वो गई, उसको जाना था, आज उसका टाइम खत्म हो गया, वो चली गई, right? लेकिन उसके जाने से अपने को क्या तकलीफ हो रही है? वो क्यों चली गई? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? Are we blaming ourselves? Guilt आ गया? उसको जाना ही था तो वो जाएगी, right? You cannot stop. You cannot give life and death पे. You don't have any control. But ये guilt क्यों आया? पहला guilt इसलिए आया कि मैंने उसको पाला था इसलिए guilt आया. मैंने उसको बंद करके रखा था इसलिए guilt आया. क्यों आया? Right? This is a broader question you need to ask, not only for this example, for everything you do in your life. Don't create things where you feel guilty. और अगर कहीं पर guilty feel कर रहे हो तो come face it in the mirror. Yes, I'm feeling इसलिए मेरे को खराब लग रहा है. Face it directly on the face and I'll not do it again. Simple. And उसको जाना था. You don't have any control over it, right? You cannot feel guilty about it. Yes, next time, since I've not been able to take a proper kind of care of the bird, next time I'll not keep a bird. Right? Maybe if I love so much, I'll feed the bird outside. I'll go in the niche and feed the birds, and I'll feel very happy doing that. Right? There's no guilt. There should not be any guilt. Right? Only thing is your action, what you have felt was, maybe मैंने घर में रखा तो you somewhere in the deep in your heart you had that thing, मैंने रखा तो चली गई. नहीं, कोई बात नहीं, उसको जाना था चली गई. Right? Don't worry about it, but don't repeat it again.
what I'll say, because that giving you somewhere deep inside you're not feeling good. I don't want that feeling to be repeated again in any way. So this is a pattern we don't need to repeat. If we know something is hurting you, जैसे कई बार क्या होता है, आप हस्बैंड के साथ झगड़ा हो गया एंड आपने कुछ बोल दिया एंड बाद में आप रोते मैंने क्यों बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर से 10 दिन बाद झगड़ा हुआ फिर बोल दिया. So you need to be aware कि क्या चीज मेरे को बाद में तकलीफ देती है, and you have to continuously उसके ऊपर सोचना पड़ता है, and slowly we have to remove that thought form from us, and वो पैटर्न को disintegrate करके अपनी लाइफ को प्रॉपरली आगे चलाना है. एक जगह गिल्ट होता है तो सब चीज में मन नहीं लगेगा. आज सुबह से तकलीफ हो रही होगी ना, पूरा दिन अजीब सा गया हो, बड़ा अजीब मन नहीं लग रहा हो, so it affects every part of your life. So that is manifestation. Today you manifested pain in you, right? Instead of love, you manifested pain in you. Because it's what we are manifesting for us. So next time you can't manifest pain for us, we have to manifest love for us. We have to manifest goodness that keeps my soul happy, right? Now give a good smile. You can't be looking like this. Yeah, that's better. Let go, buddy. Let go. You'll be all good. Yes, Ani. Ani Sarita ma'am, you want to add something on this? No, I would just like to say that she should replace it with happiness. कि हाँ मैंने उसको I gave her so much care in her last time. So you should feel joyful about that. Yes. So if anything else? Anyone else has any other question relating to belief? Relating to today's topic, belief के बारे में कुछ हो? Otherwise, then we close the session. Vivek ji has already blessed everyone's dreams in his prayers. And I was wanting to say one more thing. Suppose nobody wants to come out in open on the session now. If they're having any issues finding what their belief system which is hindering their growth, या फिर कोई चीज अटक है, अगर आप ओपन में अभी आना नहीं चाहते हो बोलने के लिए, you can always WhatsApp us. You can give us your issues and we can anonymously work on the इसी प्लेटफॉर्म पे we can go back and see कि क्या बिलीफ सिस्टम था जो आपको पकड़ रहा था. अच्छा, एक और information ना, our WhatsApp is always on during the session. If you have any questions you do not want to put up on the chat with your name, either you can put up as an anonymous person or you can even WhatsApp us from another number. We don't have many numbers saved. Most of your numbers are not saved with us. But if you want anonymously, you can always WhatsApp us and put up your question. It will be addressed. Maybe you don't feel like asking. You can. We are also checking our WhatsApp all the time. And one last thing I'd like to add today, कि जो आप ग्रुप में ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, कि सुबह शाम जब भी आप पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, सबको ब्लेस करिए कि सबके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, सबके हर्डल्स रिमूव हो रहे हैं. खाली अपने लिए प्रे मत करिए, आज सबके लिए प्रे करिए. देखिए कैसे इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होगा ना, आप सोच भी नहीं पाओगे. अपनी ड्रीम्स तो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी, लोगों की और मैनिफेस्ट होंगी. वी नीड टू डू दैट टुगेदर. अभी आश्विन मैम ने इस लास्ट सेशन में बहुत अच्छी एक बात बोली थी. She said when we put down our head ना, लास्ट में पूजा करके जब अपने सर को forehead को नीचे छूते हैं, that is the time we say सर्वत का भला, मतलब सबका भला. तो when you end your prayer सब पूजा करके, after that it has become, मतलब 15 दिन हुए बट मेरी आदत हो गई है. लास्ट में जब माथा टेकती हूँ नीचे में, पूजा करके उठती हूँ मंदिर से, उस समय मेरे मन से अंदर हृदय से सबके लिए निकलते सर्वत का भला, सबके लिए भला हो, सबके सपने पूरे हो. So last time we were doing this prayer, Bhavi, Sarve Bhavantu Sukhinaha. This is what exactly the prayer is all about. Right. Happiness, health and happiness for everybody around us. We were closing last time with this prayer, right? Right. Yeah, even बाल विकास में भी हमें यही बताया जाता है. सत्य साई के बाल विकास में भी, बाबा के इसमें भी, like after the bhajan and all, we till now सारे पूजा के बाद में ये था, लोकान समस्त लोकान सुखिनो भवन्तु. Yes.
See, so समस्त लोग बोलते सब सीख रहे हैं बचपन से, समझ अब कर रहे हैं, समझ में मतलब कितनी बड़ी हम प्रैक्टिस करते चले आए हैं, राइट, अब लेकिन उसको और शिद्दत से कर रहे हैं, शिद्दत मे बी से, बिकॉज दिल ऑफ एज फैक्टर. No, with knowledge. This is with knowledge. application. Now we are applying that knowledge. देखिए क्योंकि अर्जुन के आज का बच्चे बड़े सेशन मैं लॉजिकल क्लोज है ना. करता हूँ, आज का सेशन मैं क्लोज करता हूँ. चलिए, मैं एक चीज बात कर रहा हूँ, जब आप दूसरे के लिए प्रे कर रहे हो और दूसरे के लिए आपको, अपने लिए तो आप कुछ सोच नहीं रहे हो, दूसरे के लिए प्रे कर रहे हो, तो आप क्या हो गए? आप दूसरे के लिए भगवान हो गए, आप भगवान का रूप हो गए. तो इससे बड़ी बात क्या होगी जब आप भगवान रूपी इंसान धरती पे आके दूसरे भगवान का काम कर रहा है, तो भगवान अपने आप ही आपके बारे में देखेगा. आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप उनका काम करिए, वो आपका काम करेगा. सबका ध्यान भगवान खुद रखेगा. आप उनका काम यहाँ करते चले जाइए, वो आपका काम करेंगे. राइट? विद दिस कैन क्लोज टुडेज डे. सबका अच्छा हो, सबका भला हो. धन्यवाद. Thank you, thank you. Blessings to everyone. Thank you, sir. Thank you so much. So much.